Okay. Good afternoon, everyone. So I think it's the third class. So we are in the seventh chapter. The name of the chapter is System of Particles. So Mallo, Good हाँ good evening, sir. good evening. So today we start first of all kinetic energy of a rotational object. Kinetic energy of the rotational object. You can see the board, na? Hello. Yes, sir. Kinetic energy of the rotational object. और इसका फोकस का बड़ा प्रॉब्लम. Kinetic energy of the rotational object. So for that, suppose we have a irregular shape object and this is the axis of rotation about which that object is start to rotate. Suppose m1, m2, m3 dot mn, n number of particles present on that system which are at a distance of r1, r2, r3 dot rn position. Okay? They all are rotating with angular velocity omega. So if you want to calculate the total kinetic energy of the system, so how we can calculate total kinetic energy? See, as the whole system is moving, these all objects are moving like this. Yes or no? Yes or no? They all are moving in a circular track. सर्कुलर ट्रैक में सब का सब मूव करेगा ना, है ना, है कि नहीं? Yes or no? Hello. Yes, sir. Very good. So what we can say, total kinetic energy is the kinetic energy by the first particle, kinetic energy by the second particle, dot, kinetic energy by the n number of particles. So we know kinetic energy half m1 v1 square half m2 v2 square dot half mn vn square. Yes or no? Kinetic energy का क्या n number of particles is present. So for each particle, the kinetic energy is half m1 v1 square, half m2 v2 square dot half mn vn square. है ना? अब देखो हमें ये भी मालूम है कि from the circular motion v is r omega. Yes or no? So what we can write? We can write half m1 r1 omega square. We can write half m2 r2 omega square dot half mn rn omega square. तो यहाँ से देखो हम लोग लिख सकते हैं हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर dot हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. Yes, everyone? You can see this? David? ओ सर हम लोग को पूछ रहे हैं क्या सर? हमको लगा वहाँ पर जो स्टूडेंट बैठा है उसको पूछ रहे. यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, तुम लोग कोई आया ही तो नहीं. सक्षम आया है क्या सर? हाँ सक्षम आया है. हाँ तुम आ सकते हो तो. सर हाँ
सर अब पूजा दिवाली के बाद सर पूजा के बाद आ जाएगा। हम तो बेकार ही बेकार सबके लिए स्टार्ट किया ना, इतना कष्ट हाँ करके जल्दी जल्दी उठ के। हाँ सर। हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r1 square m2 r2 square dot 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 mn rn square. Can we write this? तो समझ आ रहा है ना सेक्शन? उषश्री হ্যাঁ স্যার। অফলাইনে তো আসতে পারিস, আসিস না কেন? স্যার মা যেতে দিবে না স্যার, মা বলবে না। কবে আসবে? দুর্গাপূজার পরে বল দেবে? স্যার বলতে পারছি না, মানে যবে করোনা ভাইরাসটা কমবে, মানে মানে একটু কমবে, এখন তো আরো বেশি না, ওই কারণে। এখন তো কমে গেছে, তো দুর্গাপুজো দেখতে বেরোবি না? স্যার মনে হয় না। तो ताऊ ठीक है। अब देखो ये जो है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर, ये एक प्रॉपर, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इसको कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज का क्लास सिर्फ इसी पे निछावर है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज का क्लास सिर्फ इसी पे निछावर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? देखो मैं ऐसे करके समझाता हूं कि सपोज मेरे पास एक रोटेशनल एक्सिस है, मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि r डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द separation. So what is the definition of moment of inertia? Product of mass and the square of separation. ठीक है, तो ये तो है एक पार्टिकल के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर देखें ऐसा बहुत सारा पार्टिकल है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल है तो जनरलाइज फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया जाता है, इट इज द सम ऑफ, सम क्यों? क्योंकि सबको ऐड किया है, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसके बीच में? मास एंड डिस्टेंस। तो इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या जाता है कि सम ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, मतलब m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे सम ऑफ समेशन साइन देके मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन ये जो सम है ये छोटा 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 एक एक पार्टिकल के लिए है, लेकिन अगर हम इसको छोटा छोटा पार्टिकल में ना लिख के अगर इसको कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए लिखें तो इसको हम इंटीग्रेशन साइन से लिखेंगे। हर एक पार्टिकल, दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल dm, and I think now you can realize the distance are not very small, the distance are very large distance, so we can write dr square, है ना? So this is my moment of inertia। ठीक है, क्या है? the sum of the product of mass and the square of separation between the rotational axis to the each particle। is it clear? So if I write this one as a I, so my total kinetic energy हो गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने ये काइनेटिक एनर्जी को पहले क्यों लिखा है, इसका भी पीछे एक कारण है। कारण ये है, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि इससे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखता था जो कि मेरा ट्रांसलेशनल मोशन होता था। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब एक जगह से दूसरा जगह गया। जैसे मानो अगर मैं इस पेन का बात करूं, इस पेन को मैं यहां से यहां ले जाऊं, तो दैट इज द काइनेटिक मोशन, एंड दैट टाइप ऑफ काइनेटिक मोशन इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ये एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा रहा है, ये अपने ही जगह पे घूम रहा है।
है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, बुद्धिस्ट टेम्पल में जाओगे तो देखोगे ऐसे सिलेंडर के ऊपर, ऐसे ऐसे एक्सेल के ऊपर गोल गोल सिलेंडर लिखा रहता है और उसमें बहुत कुछ तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखा रहता है। उसको बोला जाता है काल चक्र। उसको घुमाने से बोलता है कि पाप धुलता है। पाप धुले कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको ऐसे ऐसे करके घुमाने से तुम्हारा एनर्जी लॉस होता है। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इट्स वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज, है ना। तो ये जो एक्सरसाइज है, मतलब यू आर यूजिंग सम एनर्जी, है ना, मतलब यू आर रोटेटिंग दिस। सो रोटेशन ये जो है, ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये रोटेशन है, इसीलिए इसको बोला जाता है मूवमेंट। और ये भी इनर्शिया को फॉलो करता है। मतलब if the object is at rest, it is at rest. If the object is at motion, it is at motion. ठीक है। If the object is at rest, it is at rest. If the object is at motion, it is at motion. But that motion is rotational motion. तो इस rotational motion में कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आने के लिए मुझे एक कांस्टेंट फैक्टर या फैक्टोरियल फॉर्म को यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हाँ, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का साथ काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिराइवेशन भी 2 मार्क्स का देता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? यस सर। अब देखो, ये जो हमने पढ़ा, इसमें आज का क्लास मेरा मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर होगा, जो मैंने पहले ही बोला। एंड बिलीव मी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब कितना बार आईआईटी में, नीट में, कितना सारा एग्जाम में, कितना तरीका का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन दिया है। मतलब सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आईआईटी में कम से कम 10 से ज्यादा दिया है। आई कैन इवन शो यू कि देखो ये क्वेश्चन आईआईटी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आया है। तो सबसे पहले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट करने पर के लिए देखो, ये भी एक फॉर्मूला है dm_r², जिससे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका यूज मिनिमम करेंगे, क्योंकि मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जहां भी इंटीग्रेशन है उसका यूज हम लोग कोशिश करेंगे कम करने का, क्योंकि मेडिकल्स में तो उतना जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग में जरूरत है। बेसिक तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन जहां थोड़ा बेसिक से ऊपर जाइए तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन काफी अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग पहले नॉर्मल सीख लेते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो फॉर्मूला तो पता ही है dm_r², कुछ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर बेस करके भी देख लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले, क्योंकि और इसमें क्या इंटीग्रेशन से करोगे तो इट विल टेक सो मच टाइम ऑल्सो। ठीक है, जो हमें इस टाइम को भी सेव करना है, बिना इंटीग्रेशन का ऐसे पूरी बजा के हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस इज द प्लस पॉइंट जो कि एंट्रेंस में चाहिए, जो तुम्हारा टाइम सेव करेगा, है ना। तो 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दे आर, यू कैन से ब्रह्मास्त्र, एंड दे ऑल आर परपेंडिकुलर विद द प्लेन। परपेंडिकुलर विद द प्लेन मतलब अगर मैं ये एक प्लेन मानता हूं, अगर मैं मानो इसको एक प्लेन मानता हूं, तो परपेंडिकुलर विद द प्लेन माना मतलब इसका ये वाला एक्सिस। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर विद द प्लेन। समझ में आया? दिस इज ऑन द प्लेन, ये जो है ऑन द प्लेन हो गया, ये जो है ऑन द प्लेन हो गया, लेकिन ये जो है परपेंडिकुलर विद द प्लेन हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परपेंडिकुलर विद द प्लेन का क्या मतलब है? जो यहाँ पे बैठा है उसको बहुत अच्छा से समझ में आ गया ये बात, लेकिन जो वहां पे बैठा है उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यू अंडरस्टैंड परपेंडिकुलर विद द प्लेन क्या मतलब हुआ? इस प्लेन का परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर विद द प्लेन, जो 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उनमें से पहला वाला है रिंग। रिंग, तो ये एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, और इसका सेंटर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। द सेकेंड वन इज डिस्क। ये डिस्क का क्या होगा? ये है डिस्क, ये है सेंटर,
ये है मास और ये है रेडियस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr स्क्वायर। 25 मान बोल আসবে। तीसरा नंबर पे है रॉड। तो रॉड के लिए क्या है? ये मेरा रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/12 ml स्क्वायर। उसके बाद है शेल। शेल मतलब हॉलो स्फीयर। शेल मतलब हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। और एक है दैट इज द स्फीयर 12। और एक है विच इज कॉल्ड द स्फीयर। अब तो बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्फीयर का मतलब है सॉलिड और शेल का मतलब है हॉलो। स्फीयर का मतलब है सॉलिड, शेल का मतलब है हॉलो। हाँ, रिंग का तो बीच में खाली है, पूरा पतला रिंग है। और डिस्क का मतलब तो डिस्क तो समझते ही हो, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, वो जो डिस्क है, डिस्क के ऊपर सब डांस करता है। डिस्क से डिस्को आया है ना, ग्रामाफोन का डिस्क, टीवी का डिस्क है ना, चाय रखने का जो प्लेट है उसको भी डिस्क बोलते हैं हम लोग। बांग्ला में काप डिश बोले, प्लेट भी बोलता है लेकिन डिस्क भी बोलता है। प्लेट इसलिए बोलता है कि जरूरी नहीं वो सर्कुलर होगा, लेकिन डिस्क इज ऑलवेज सर्कुलर, फ्लाइंग डिस्क है ना। So first you please remember this 5. The first one is mr square, second one is half mr square, third one is 1/12 ml square. The fourth one is 2/3 mr square, and the fifth one is 2/5 mr square. These 5 are very, very important, very, very vital. These 5 are very, very important, very, very vital. Is it okay, everyone? Everyone, is it okay? सबको याद हो गया? Yes, sir. Hello? Yes, sir. सबको याद हो गया? Okay. So if you all remember this one, you सबको याद हो गया? याद हो गया? चलो, तो रॉड का बोलो तो कितना है? बिना देख के याद हो गया मतलब देखने का जरूरत नहीं। बोलो शेल का कितना है? बिना देख के। शेयर का? रॉड का? रिंग का? mr स्क्वायर। डिस्क का? हाफ mr स्क्वायर। तुम लोगों का पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब है? स्कूल में मीटिंग कब है? 9 तारीख। ओके। तो अब देखो, अब है 2 थ्योरम। दीज 2 थ्योरम्स आर वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वाला जो है इसको बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? कुछ भी, कोई भी एक सरफेस ले लो, रेगुलर या इरेगुलर शेप, इस तरह का, इसको बोला जाता है इरेगुलर शेप लैमिना। एक हमने इरेगुलर शेप लैमिना लिया, ठीक है, और इसका सेंटर मतलब जहां पे टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास।
जो हम लोगों ने पिछला 2 क्लास में खाली सेंटर ऑफ मास पढ़ा है। स्कूल में एक क्लास में खत्म करता है, मैंने लगभग 2.5 से 3 घंटा पढ़ाया सेंटर ऑफ मास खाली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इतना ज्यादा जरूरी है। तो ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, जहां से एक एक्सिस गया, एंड सपोज दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर विद द प्लेन। परपेंडिकुलर विद द प्लेन मतलब दिस वन। तो देखो, जो यहाँ पे बैठा है उसको बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है, और जो उसको है उसको सिर्फ बोर्ड में है उसको सिर्फ एक टिप दिखाई दे रहा है ना। इसको अगर हम आई सेंटर ऑफ मास बोले, और पैरेलल मतलब दे आर पैरेलल, ये सब नो, दे आर दे पैरेलल? क्या ये पैरेलल है? क्या ये पैरेलल है? नहीं। क्या ये पैरेलल है? नहीं। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब समझा? पैरेलल मतलब दोनों एक्सिस ऐसे रहेगा। दिस इज नॉट पैरेलल, है ना? दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल। ओके, सो इसका एक पैरेलल एक्सिस अगर हम लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे है, और अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालना चाहे, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालना चाहूं, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the center of mass plus total mass concentrated and square of the separation between the parallel axis. You understand? Is it okay? Is it visible? Everyone? Hello? Is it audible? বুঝতে পারলি এটা এতখানি? समझ में आया? हाँ, तुमको पूरा सर्दी हो गया? आने से पहले से हुआ है कि आने के बाद हुआ है? तब तो ठीक है, ये तो बोलेगा सोमनाथ सर के यहाँ पे आते हैं। चलो, अब देखो इसका प्रूफ भी देता है कभी कभी, एंड दैट प्रूफ इज दे कैन आस्क यू, एग्जामिनर कैन आस्क यू 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो देखो प्रूफ के लिए क्या है, पहले एक पॉइंट लो, लेट द पॉइंट इज पी, जिसका मास है m, विच इज एट ए डिस्टेंस r। ओके, सो लेट फॉर अ पॉइंट मास m, for a point mass m, moment of inertia I is equals to m, यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, मास इंटू r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ लो, अंडरस्टैंड ना? पॉइंट मास के लिए क्या होता था, एम आर स्क्वायर। ये समझ लो। एवरीवन, इज इट ओके? समझ में आया? तुम लोगों को समझ में आया? हेलो, एम आई ऑडिबल? सर एक और बार समझा दो ना। अरे एक पॉइंट मास लिया है जो इस सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस है, तो इससे क्या हो गया, r प्लस एक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? सो लेट फॉर अ पॉइंट मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमा I इक्वल्स टू m r प्लस एक्स होल स्क्वायर। अरे मास इंटू सेपरेशन, यहां से इसका सेपरेशन कितना है, r प्लस एक्स, उसका होल स्क्वायर। हाँ सर समझ गया। समझ गया? अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे, सो फॉर टोटल सिस्टम, टोटल सिस्टम मतलब दिस होल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। ये जो एक मास लिया है इसको हम सम अप करेंगे, मतलब हर एक के लिए छोटा 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 पार्टिकल सबको हम कंबाइन करेंगे तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ये सर नो? तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ m r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, सम ऑफ m r स्क्वायर, सम ऑफ m x स्क्वायर
plus sum up 2mrx. Clear everyone? Can we write this? मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ कि एक बच्चा सेंटर में आया है पढ़ने के लिए और मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि तुम लोग हो, फिर भी क्या दिन देखना पड़ा इस कोरोना के चक्कर में। माय गुडनेस। एम आर स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एम को हर में है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2rx, है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि सम अप एम आर स्क्वायर। देखो सेंटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट पोजीशन, इसी को तो आई सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अच्छा, सम अप एम इंटू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स जो है फिक्स है, डिफरेंट पार्टिकल का सम अप करेंगे तो ये क्या होगा, टोटल मास, और एक्स तो फिक्स है एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ एम आर इंटू एक्स। यहाँ पे देखो आर इंटू एक्स इस साइड पॉजिटिव हो सकता है, अगर इस साइड आएगा नेगेटिव हो सकता है। तो जब इस साइड और इस साइड को टोटल हम सम अप करेंगे, प्रैक्टिकली देखा गया है जो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 होता है। और तुम लोगों को उतना याद रखने का जरूरत है, तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा फॉर्मूला ये है। तो ये वाला हो गया सेंटर ऑफ मास, इसको खाली कैपिटल एम कर दो तो बाकी जो बचा वो 0 ही होगा, है ना। तो अगर हम इसको लिखता है, सो माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I center of mass plus mx square. Okay. अभी मेरा कल्याण हो जाता। Everyone, is it okay? Everyone, is it okay? Okay. So clear, done. Next one is perpendicular axis theorem. Next one is perpendicular axis theorem. नेक्स्ट ईयर कोरोना खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर भी खत्म नहीं होगा। अभी तो सुन रहा फिर बढ़ रहा है ना। स्कूल खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। स्कूल में तो कितना जन को, इंग्लिश मैम को तो पूरा फैमिली को कोरोना हो गया है। नहीं, क्या नाम है उसका? अच्छा, अर्चना मैम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, सेम वही, मानो एक लैमिना है, रेगुलर और इरेगुलर, और इस लैमिना का कोई भी एक पॉइंट ले लो। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया है, इट्स नॉट अ सेंटर ऑफ मास, इट्स अ एनी पॉइंट। हाँ, आई रिपीट, दिस पॉइंट इज नॉट सेंटर ऑफ मास, नॉट नेसेसरी सेंटर ऑफ मास, दिस इज अ एनी पॉइंट। अब इसका ये एक एक्सिस हो गया और इसका एक परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। सो आई कैन सपोज वन इज द एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज द वाई एक्सिस। सो ऐसा जरूरी नहीं है यही दोनों होगा, तुम ऐसे भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस दे सकते हो। और गेटिंग माय पॉइंट, माने these two axes must be perpendicular with each other. These two axes must be perpendicular with each other, and at the point of intersection, मेरा पेन सब कहाँ चला गया? At the point of intersection, अगर मैं एक एक्सिस लूं which is perpendicular with the plane, मतलब ऐसे। Are you getting my point? हाँ, तुम लोगों को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा, बोर्ड का परपेंडिकुलर, ठीक है, बोर्ड का परपेंडिकुलर विच आई कैन शो यू डायमेंशनली ऐसे करके, आई जेड जेड डैश परपेंडिकुलर विद द प्लेन। क्लियर?
सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है कोई भी एक पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर विद द प्लेन, मतलब इस प्लेन का परपेंडिकुलर जिस पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जो दो एक्सिस ऑन द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर का सम है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of these two individual axes. These two axes must be perpendicular with each other and they must be in the same point passing to the same they must be in the same plane and passing to the same point। समझ में आया? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोई भी एक पॉइंट पे दो एक्सिस सेम प्लेन में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो होगा ये दोनों का सम होगा। परपेंडिकुलर जो है वो ये दोनों का सम होगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। कोई भी एक पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस जाएगा उस पॉइंट पे उस प्लेन पे जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसका सम होगा। ठीक है, नाउ हाउ यू प्रूव इट? दिस टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इतना इंपॉर्टेंट है अगर इफ यू अंडरस्टैंड दिस टू यू कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस वन एक्सेप्ट दैट माने अगर इफ योर मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज सबका हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रूफ देखो। मानो हमने एक पॉइंट चूज किया P, सो इसका हमने कोऑर्डिनेट दिया x, y। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये इससे x डिस्टेंस पे है, ये मेरा x डिस्टेंस हो गया और ये मेरा y डिस्टेंस हो गया, और इससे मैं ये डिस्टेंस को क्या बोलूंगा? r। नहीं समझ में आया? देखो यहां पे जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस एक्सिस का कितना डिस्टेंस होगा? इस एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस होगा ना। तो ये डिस्टेंस कहां से मिलेगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आर मिलेगा ना। वेरी सिंपल है ना। तो मुझे इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट द जेड एक्सिस। So what we can say, let moment of inertia for a point mass m about z dash axis is I z dash, that is m into r square. Is it clear? Everyone, is it clear? Everyone, is it okay? Yes sir. উষশ্রী শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, what do you mean by r? r is root under, r is what? Root under x square plus y square. So x square plus y square whole square. So what we have? mx square plus my square. Clear everyone? अब ध्यान से देखो, ये जो है एक्स एक्सिस, मतलब अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ए देखो अगर ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है तो डिस्टेंस कौन है? एक्स है ना। और अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो डिस्टेंस कौन है? वाई है ना। सो आई एक वाई डैश, इस वाई डैश के रिस्पेक्ट में जब घूमेगा तो इसका क्या हो जाएगा? mx स्क्वायर, एक पार्टिकल के लिए। इसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है ये मास और ये डिस्टेंस ना। और अगर वाई डैश के लिए करेगा तो m वाई स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस है ना। तो ये है एक पार्टिकल के लिए। अगर इसी को हम सम अप कर दे तो टोटल क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? इसी को अगर हम सम अप कर दे तो टोटल क्या हो जाएगा? तो आई कैन राइट, सो total moment of inertia about z dash is summation mx square plus my square, that is sum mx square plus
sum mi square, that is m y dash x dash z dash, हुआ ना? So now we use these two axes, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem, and we try to find out the moment of inertia of so many situations. Like you can give a heading, number one, ring. रिंग लिखा, देखो रिंग में हम लोगों को क्या मालूम है? रिंग में हमें मालूम है कि अगर मेरे पास एक रिंग है तो r अगर इसका रेडियस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, एंड हियर दैट एक्सिस इज परपेंडिकुलर विद द प्लेन, मतलब ऐसे करके, है ना? ये सब यू अंडरस्टैंड द परपेंडिकुलर? रिंग अगर ऐसा है, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसी रिंग को अगर मैं ऐसे करके रखता हूं और ये मेरा एक एक्सिस है y एक्सिस और ये मेरा एक एक्सिस है x एक्सिस और ये मेरा सेंटर से गया है z एक्सिस, तो देखो सेंटर वाला एक्सिस ये दोनों का परपेंडिकुलर है, तो आई कैन राइट, और सेंटर वाला ही यही है z डैश। मैंने जो 5 ब्रह्मास्त्र दिया था कि रिंग, डिस्क, रॉड, शेल एंड स्फीयर, दे ऑल आर परपेंडिकुलर विद द प्लेन, मतलब अंदर से गया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस is the sum of the moment of inertia about the x-axis plus y-axis according to perpendicular axis theorem. Now, ऐसे करके काटे या ऐसे करके काटे तो हाफ ऑफ हाफ रिंग होगा, तो आई कैन से दिस रिंग इज सिमेट्री अबाउट x-axis और y-axis। तो इसका मतलब आया है क्या? तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस आर इक्वल। So as the moment of inertia about the x-axis or y-axis is equal, if we add them, we can say this is either 2 x-axis or 2 y-axis because x and y are same. So I can write it 2 x-axis because x-axis and y-axis are equal, or 2 y-axis. So moment of inertia about the x-axis or y-axis is half of मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस, माने हाफ ऑफ क्या, इस रिंग का मतलब क्या है, z एक्सिस का क्या है, mr स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ mr स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस जो है ये क्या है, डायामीटर। तो रिंग का डायामीटर समझ में आया, रिंग का डायामीटर मतलब ऐसे गया, और परपेंडिकुलर हो गया ऐसे उस सेंटर के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया moment of inertia of a ring about, is it okay everyone? Everyone, is it okay? Yes, sir. About diameter लिखा हुआ है, ठीक है। My next heading is disk. So if I write my next heading is disk, तो मुझे इसको डिस्क बनाना पड़ेगा।
तो मैं इसको हाफ एम आर स्क्वायर करूंगा, मैं इसको भी डिस्क बना दूंगा, तो इसको डिस्क बना दूंगा, तो यहाँ पे 1/2 एम आर स्क्वायर मतलब 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ डायमीटर कितना हो गया 1/4 एम आर स्क्वायर। हाँ, अब देखो इसका प्लस पॉइंट क्या है, एंट्रेंस में कैसा न्यूमेरिकल देगा, तुम अगर देखोगे बुक में, अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ, ये बुक में अगर कैलकुलस मेथड से बनाया है तो 2 पेज, बिलीव मी 2 पेज, इट विल टेक 2 पेज। और तुम्हें अगर मेरा ये फंडा मालूम होगा तो देखो तुम कैसे बनाओगे। ये मेरा एक इलिप्टिकल डिस्क है, इलिप्टिकल डिस्क मतलब ये है, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस और इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। तुम लोग क्या कहता है उसको, कॉनिक सेक्शन शुरू किए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हुआ है तुम लोग का, कॉनिक सेक्शन हो गया, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, हाँ डिबेट, ओ डिबेट, हाँ सर। स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। सर मैथ्स में हाँ सर नहीं पता सर, करा तो रहा था सर स्कूल में, कुछ तो करा रहा था सर। तो जो भी हो, वो this is सर the मनोज सर major क्या पढ़ा था सर, कुछ समझ ही नहीं आता ना सर, क्लास मत बोलो, अटेंड करने रिकॉर्डिंग में। हो रहा है। देखो इधर देखो, ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस। तो जब इसके रेस्पेक्ट में होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके रेस्पेक्ट पे जब होगा, जैसे ये वाला के रेस्पेक्ट पे हो रहा था, तो ये मेरा रेडियस था, है ना, और डायमेट्रिकली मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है 1/4 एम स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अगर मेरा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a का हाफ माने a, तो रेडियस के जगह पे a लेगा। तो सर्कल और इलिप्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर a एंड b इक्वल हो गया, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इक्वल हो गया, यहाँ पे भी देखो 2a है, यहाँ पे भी 2r है ना, तो अगर 2r दोनों सेम हो गया, मतलब a एंड b इक्वल हो गया तो सर्कल बोलता है, अगर a एंड b नॉट इक्वल तो इलिप्स। ठीक है, तो अगर मेरा इसके रेस्पेक्ट पे हो रहा है तो मेरा 1/4 m क्या लेगा a, तो इसको हम लिखेगा 1/4 m a स्क्वायर। और अगर इसके है, ये भी देखो एक डायमीटर है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है ये, तो इसके लिए क्या लिखेगा 1/4 m b स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। अब इसका परपेंडिकुलर, रेड पेन परपेंडिकुलर विद द प्लेन, और देखो परपेंडिकुलर और इसमें एक और डिफरेंस देखो, ऐसे डीप लाइन है और परपेंडिकुलर में देखो बीच में गायब है, गायब है मतलब ये अंदर घुस गया है, इसलिए बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। फिगर ड्रॉ का तरीका ये एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, इसको दिखाने के लिए जब फोटो लेते हैं तो जब ये इधर वाला आता है तो पीछे वाला अंदर जो घुसा है इसके कारण ये साइड दिखेगा नहीं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर। ठीक है, बीच में देखो गायब है मतलब ये परपेंडिकुलर विद द प्लेन है। तो ये वाला देखो क्या हो गया जेड जेड डैश, इस एक्सिस का परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा 1/4 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सुन लो, ये सुन लो, ये सुनो। अच्छा, कोई अगर देखो ये मेरा जेड एक्सिस था, कोई मुझे ये मतलब दे आर पैरेलल, ये सुन लो, कोई मुझे यहाँ पे माने ए पॉइंट दिस पॉइंट पे बट परपेंडिकुलर विद द प्लेन, इसलिए मैं इसका पैरेलल दे रहा हूं ना, और डॉटेड लाइन माने इसका परपेंडिकुलर, इसका पैरेलल, है ना। तो अगर मुझे कोई बोलेगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका तो मुझे पता है, सेंटर ऑफ मास से भी गया है, ये तो मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है ICM प्लस mx स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कुछ भी एक नाम दे दूं
मानो ए बी लिखता हूं, so about AB is I z dash plus m x स्क्वायर, यहाँ पे x कितना है, a है ना, तो a स्क्वायर 1/4 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर, माने 5/4 m a स्क्वायर प्लस 1/4 m b स्क्वायर, है ना, समझ में आया बात, थोड़ा थोड़ा सेंटर का फीलिंग आ रहा है। रिंग के बाद नेक्स्ट इज रॉड। रिंग के बाद नेक्स्ट इज रॉड। तो देखो रॉड में क्या होता है, ये एक रॉड है जिसका लेंथ है L। तो अगर मैं यहां से इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, मास इसका m है, तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा 1/12 ml का सेक्शन याद है। तो अगर किसी ने बोला व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एंड, पहला बात है कि दो की रॉड का मतलब क्या था, थिकनेस इज 0, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थिकनेस, तभी वो रॉड है, रॉड का मतलब कोई थिकनेस नहीं है। तो ये x कितना हो जाएगा L/2। सो अगर किसी ने मुझे एट द एंड ऑफ AB मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू x माने L/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/4 ml स्क्वायर, that is 1/3 ml square। समझ में आया? So you can understand why I am saying this parallel axis theorem and perpendicular axis theorem are very very important, because if you remember or if you understand these two theorems, you can solve any question related to that। ठीक है, কি খবর স্যার? এই তো চলছে, এতদিন তো অফলাইন, আজকে থেকে একটু একটু অফলাইন অনলাइन একসঙ্গে শুরু হচ্ছে। ও থ্যাংক ইউ, দাঁড়া একটু বস, ठीक है ओके। अच्छा इसके बाद देखो, এই শোন না, দুটো চা বল না, তুই একটা খাবি আমি একটা খাবো। अच्छा इसके बाद देखो नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर स्लैब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टेंगुलर स्लैब, स्पेलिंग भी भूल गया है, क्या हालत हो गया है मेरा। रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब, तो एक मेरे पास मानो ऐसे करके रेक्टेंगुलर स्लैब है, तो ये हो गया 2A, ये हो गया 2B। अब देखो अगर किसी ने मुझे बोला व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज एग्जैक्टली मिडिल, तो देखो ये जो मिडिल में है, अच्छा इसको 2A मत लो, A लो, A और B लो, ज्यादा आसान होगा। दिस इज B, दिस वन इज A। तो देखो अगर मुझे बोला इसके अगेंस्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इफ वी सपोज दिस वन हैज अ लेंथ, तो थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इज 1/12 ml स्क्वायर फ्रॉम द मिडिल। तो आई कैन से लेट इट बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1, इसको हमने 1 माना, तो ये हो जाएगा 1/12 मास
ये डिस्टेंस कितना है, ए थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। कैन वी राइट दिस? हेलो, Yes, sir. सिमिलरली एनीवन टेल मी, ये अगर एग्जैक्टली मिडिल है, इसका लेंथ है, सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू? इसका मिडिल, तो क्या होगा इसका आंसर? 1/12 mb स्क्वायर। वेरी गुड, 1/12 mb स्क्वायर। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने रॉड का एंड पढ़ा ना, रॉड का एंड में कितना पढ़ा था? ये 3 है, ये 2 है, कितना पढ़ा था रॉड का एंड में? 1/3 m, एल स्क्वायर की जगह पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 m a स्क्वायर। सिमिलरली अगर किसी ने मुझे यहाँ पे बोला ये 4 हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इस लेंथ का एंड है, मतलब 1/3 m b स्क्वायर। अब इसके अलावे अगर किसी ने मुझे बोला यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, I5, तो देखो I5 जो है I1 and 2 का परपेंडिकुलर है कि नहीं, बोलो। I5 जो है इसका और इसका परपेंडिकुलर है कि नहीं, बोलो, है ना? Yes or no? If we put a pen here and we have, this is one, अरे माय रे, ये मेरा z एक्सिस है मानो, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो they are perpendicular to each other or not? Tell me, yes or no? Hello, anyone please tell me yes or no? Yes, sir. हाँ, so मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द 5, देखो क्या हो गया, 1 और 2 समझा करो, दोनों का ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये दोनों का जो मिलन पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट, वहां पे इसको छेद करते हुए ऐसे आएगा, समझा? तो ये Yes. जो लाल वाला है ये दोनों का सम होगा, क्लियर? तो देखो ये जो लाल वाला है 1 और 2 का सम होगा, तो 1 और 2 का सम होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2, तो ये क्या हो सकता है? 1/12 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सर नो? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर किसी ने मुझे बोला ये मानो 6 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखो 6 जो है कौन दोनों का परपेंडिकुलर है, बोलो तो? इस पॉइंट से 2, एक ये गया है ना और एक ये गया है कि नहीं? Yes, sir. So can we write number 1, method 1? देखो मैं दोनों मेथड दिखाऊंगा। I6 that is I2 plus I3. Can we write? Yes, sir. ये देखो ये पॉइंट ये गया, ये इसका एंड है और 2 का मिडिल पॉइंट से गया है। I4 तो ये वाला है एंड, तब तो मेरा ये पॉइंट हो गया, मैं तो ये पॉइंट बोल रहा हूं। तो क्या हो गया? I2 कितना है? 1/12 mb स्क्वायर। I3 1/3 m स्क्वायर। ये सब नो समझ में आया? समझ में आया? उषश्री बुझते बच्चे? Yes, sir. अच्छा देखो एक और बात, सक्षम को यहाँ से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इवन यू कैन इमेजिन ऑल्सो, देखो ये जो रेड 5 और 6 दिया है, 5 and 6 are like this, yes or no? 5 or 6 are like this, yes or no? Yes, sir. They are perpendicular or not? They are parallel or not? Parallel? Parallel. तो दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये वेरी गुड,
a/2। तो अगर दोनों का बीच का डिस्टेंस a/2 है तो हम परपेंडिकुलर क्यों, मैं पैरेलल एक्सिस से भी चेक कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, I6 मेथड 2, I6 जो होगा ये जो गया मतलब I5 है ना, I5 सेंटर ऑफ मास है, ये समझो I5 सेंटर ऑफ मास है, और I5 और I6 के बीच का डिस्टेंस कितना है, ma/2 का होल स्क्वायर। अब I5 मेरा क्या है, 1/12 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1/4 m स्क्वायर। तो क्या हो गया, 1/12 mb स्क्वायर प्लस 1/3 m स्क्वायर। यस और नो, अंडरस्टैंड everyone, is it okay? Everyone, is it okay? Everyone, is it okay? कोई कुछ बोले ही ना, उषा बुझते बच्चे। Yes, sir. एवरीवन डन, स्ट्रक्चर समझ में आया। तो मुझे रेक्टेंगुलर स्लैब समझ में आया। आफ्टर रेक्टेंगुलर स्लैब नेक्स्ट इज hollow sphere. Next is hollow sphere. Hollow sphere और शेल। तो ये है मेरा शेल, hollow sphere। ये है सेंटर, इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया by 3 mr square। और इसके साथ क्वेश्चन देता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू अ एक्सिस टचिंग द स्फीयर शेल, माने टेंजेंट। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, ICM प्लस mr स्क्वायर 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 5/3 mr स्क्वायर। एवरीवन, इज इट ओके? Everyone, is it okay? Yes, sir. सेक्शन समझ में आ रहा है ना? Now, after hollow sphere, that is a solid sphere. Or sphere. Solid sphere itself a sphere. So the difference is ये solid होगा. So this one is 2/5. यहाँ पे होगा 2/5. यहाँ पे होगा 7/5. Yes or no? Yes, sir. हाँ, जरा जरा 5 मिनट जरा। टू बाई 5 mr स्क्वायर, तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 7/5 mr स्क्वायर। ठीक है। After that, next is hollow cylinder. Hollow cylinder.
देखो हॉलो सिलेंडर को अगर तुम ऐसे दिखोगे तो क्या दिख रहा है? इसका ये क्या दिख रहा है? रिंग 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 दिख रहा है ना? यस सर। तो हॉलो सिलेंडर ऐसा है, जिसका लेंथ L है, रेडियस R है। तो देखो अगर हम 1 से लेगा तो ये क्या दिखेगा? रिंग दिखेगा। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग? mr²। अगर मैं ऐसे करके ये वाला एक्सिस पे लूं तो ये डिस्टेंस क्या है? I1 प्लस mr², that is mr² प्लस mr², that is 2mr²। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे करके एक डायमीटर लूं तो देखो ये क्या हुआ? ये रिंग का डायमीटर हो गया, इसके अंदर से गया है। तो रिंग का डायमीटर मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ द रिंग, है ना? तो 1/2 mr²। और रॉड का मिडिल में क्या होता है? 1/12 ml²। ये सब नो समझ में आया? और यही मैं अगर यहां से लूं तो I4, देखो रिंग का मिडिल से क्या होता है? 1/2 mr²। और रॉड का एंड से क्या होता है? 1/3 ml²। ये सब नो? एवरीवन ये सब नो? Yes, sir. इसी को अगर हॉलो सिलेंडर के जगह पे हम अगर सॉलिड सिलेंडर बोलते, सो व्हाट इज द डिफरेंस? ये एक डिस्क जैसा दिखता, ये देखो ये क्या दिख रहा है? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये है सॉलिड, सॉलिड माने डिस्क। तो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? 3/2। सॉलिड का डिस्क का सेंटर से क्या जाएगा? 1/4। यहां से कितना जाएगा? 1/4। ओके एवरीवन? एवरीवन इज इट ओके? सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका और कुछ न्यूमेरिकल करके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में घुसेंगे। क्लियर? एंड इट्स योर चॉइस। तुम लोग दुर्गा पूजा के बाद भी आ सकते हो, दुर्गा पूजा से पहले भी आ सकते हो। तो एटलीस्ट कुछ दिन तो हम स्टार्ट करते हैं जब तक कोरोना बढ़ता नहीं है। ओके, तो आई एम स्टॉपिंग माय रिकॉर्डिंग। और तुम लोगों को मैंने